Hey guys, so this is my first video, and this video would target on major stock market updates on May 28, 2026, and we would try to cover 17 major stories that happened since yesterday, and we would try to take a fundamental analysis and a technical analysis view on all of those stories. So welcome everybody. My name is Prakhar, and let's get started on this. So the first major story is Taiwan overtakes India. ताइवान ने इंडिया को ओवरटेक कर लिया है स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन में. बेसिकली ताइवान का मार्केट में एआई ड्रिवन चिप रैली बहुत ही मेजर तरीके से बिकॉज ऑफ देयर एक्सपर्टीज़. ताइवान बहुत ही छोटा सा कंट्री है, बट उनके जो ओवरऑल एआई रिलेटेड हार्डवेयर पे जो उनका स्पेशलाइजेशन है उसकी वजह से उनके स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन में मेजर बूम आया. सो जो ताइवान का डॉलर टर्म्स में करंट मार्केट कैप है वो $4.95 ट्रिलियन का एज ऑफ May 25th 2026, और इंडिया का जो मार्केट कैप है वो $4.92 ट्रिलियन का है, ड्रॉप टू 6th पोजीशन ग्लोबली. तो कभी भी जैसे आप स्टॉक मार्केट की न्यूज़ देखते होंगे, जब भी कभी क्रैश आता है तो इतने लाख करोड़ इन्वेस्टर्स के स्वाहा हो गए. सो दोस दैट होल मार्केट कैप इवेपोरेट्स, एंड मार्केट कैप इज़ नथिंग बट अ फंक्शन ऑफ your overall your, like, let's assume if I say Nifty 50. So if you go to Nifty 50, so that is your market capitalization. So if we have $4.5 trillion of overall market capitalization, so a lot of which is coming from Nifty 50. So if our market loses its in value percentage points, this market cap shrinks. So because of this, ताइवान ने हमें ओवरटेक कर लिया है, जो $30 बिलियन का गैप है एज पर ब्लूमबर्ग बिजनेस स्टैंडर्ड. सो उसमें मेजरली आई थिंक इफ़ यू सी TSMC, so I'll show you what is TSMC. So TSMC, if you see Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation Limited. So TSMC has a since their launch, they have seen considerable volume upshifts, and their earnings are also showing positively, and they are showing very positive, and the overall uptrend has been continued. So this is the primary reason Taiwan gaining this much attraction. And Taiwan index, which is called TAIEX. So TAIEX I will open. So if you see TAIEX, this is TSEC weighted index. The rally is phenomenal. This is on a monthly time frame, and if we try to see, this is like, if we consider this as a support from 2019, it's a retest on a monthly time frame, and since then this rally is continued, और 251% के gains है in past 5 years, and this rally is just getting started, people are saying, and there are speculation around it. But right now the levels of Taiwanese market is very there is a lot of speculation going on in this market at this moment. Right now the FPI outflow from India, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, दे हैव टेकन आउट क्लोज टू सम $24.3 बिलियन, जो कि 2025 का जो रिकॉर्ड एनुअल आउटफ्लो था उससे भी ज़्यादा है, और अभी साल सिर्फ आधा हुआ है. और FPI इनफ्लो इनटू ताइवान इज़ समवेयर क्लोजर टू $25 बिलियन. सो आप इजीली स्टिपुलेट कर सकते हैं कि मतलब इंडिया से 25, मतलब इट्स नॉट सो इजी टू से कि इंडिया से 25 बिलियन डॉलर्स निकले और यूएस में वो 25 बिलियन, ताइवान यूएस इन्वेस्टर्स और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने वो $25 बिलियन ताइवान में लगा दिए. बट ओवरऑल जिधर मनी मूव करती है, यू सी दीज अपटिक्स, यू सी दीज मूव्स, यू सी दिस मोमेंटम. सो राइट नाउ मोमेंटम इज़ विद ताइवान. Next, the major commentary that I was really thoughtful about, Yi Ping Lau. So he's a fund manager from Franklin Templeton, and his statement I liked a lot. Like, you can follow this lady. She's she posts really good content, and her commentary that Taiwan's rising market capitalization is fundamentally a reflection of its heavy concentration in tech hardware. इंडिया में हमारे पास टेक हार्डवेयर पे कोई भी मेजर ऐसी कंपनी नहीं है जो कि सेमीकंडक्टर नैनोमीटर लेयर पे सेमीकंडक्टर्स को मैन्युफैक्चर कर रही है, विच इज़ करेंटली एट द सेंटर ऑफ द एआई इन्वेस्टमेंट साइकिल. क्योंकि जो पूरा एआई का थीम है वो इट इज़ राइट नाउ सेंटर्ड अराउंड टेक हार्डवेयर. सो वी आर लैकिंग इन दैट डायरेक्शन, एंड ताइवान इज़ गेनिंग दैट शेयर ऑफ द मार्केट. As per Japan Times, TSMC market cap is now near to 2 trillion by itself, larger than India's entire IT sector. So a single organization, TSMC, देयर लाइक, अगर आप इंडिया के एक तरफ पूरे आईटी सेक्टर को जोड़ दें और एक तरफ सिर्फ TSMC को, सो TSMC हैज़ मोर market cap as compared to Indian IT sector combined. Its overall market capitalization is $2 trillion, and they are masters in 2 nanometer chip production.
सो विच इज़ वेरी रेयर एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रिसिशन। आपको बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है ऐसे हार्डवेयर को सेटअप करने के लिए जो कि इतने नैनोमीटर स्केल्स पे चिप्स का प्रोडक्शन कर सके। एंड इट्स अ वेफर लाइक स्ट्रक्चर, लाइक चिप प्रोडक्शन इज़ अ वेरी स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग। So now coming to the second major highlight which I found for this week very interesting, that Hyundai Motor India, like they are planning a car price hike from June 1st. So अब Hyundai अगर ये Hyundai अगर ये प्राइस बढ़ा रहा है तो अगर हम निफ्टी ऑटो इंडेक्स को वीकली टाइम फ्रेम पे देखें, सो हमें वीकली टाइम फ्रेम पे 2020 से एक कंसिस्टेंट बुल रन दिख रहा है जो कि लगभग 477% के ओवरऑल रिटर्न्स इंडियन ऑटो सेक्टर ने दिए हैं फ्रॉम द कोविड डिप। अगर नेचुरल रिटर्न्स को अगर हम देखें लास्ट 1 ईयर के, सो दैट नेट 1 ईयर का जो रिटर्न है हमारा वो -4.70% है। बट ओवरऑल ऑटो सेक्टर में हमें कंसिस्टेंट अप ट्रेंड दिखा है पूरे इंडियन मार्केट में, क्योंकि जो इंडिया की इकोनॉमी जैसे ही लोगों की स्पेंडिंग पावर बढ़ी बिकॉज ऑफ दैट स्टेटस सिंबल एंड अ लॉट ऑफ सोसाइटी पीयर प्रेशर, लोगों को अपना एक सोसाइटी में अपनी एक वर्थ प्रूव करने के लिए दे हैव टू हैव अ ऑटो, बिकॉज ऑफ विच ऑटो सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा रैली रही है। और Hyundai भी इसका मतलब Hyundai एंड ऑल अदर मेजर कार ब्रांड्स, मारुति, महिंद्रा, दे ऑल आर रेजिंग देयर कार प्राइसेस एंड कस्टमर इज़ अब्जॉर्बिंग दिस शॉक। सो Hyundai ने अपने आई थिंक दे सेड दैट फॉर देयर टॉप मॉडल वेरिएंट्स दे आर गोइंग टू इंक्रीज द प्राइस बाय 12,800 per vehicle. Hike applies to model and variant range, different models, different variants, but still the price hike is going to get absorbed by the customers. अब अगर इस खबर को हम इसके अंदर की बात को समझने की कोशिश करें तो अंदर की बात हमें ये समझ में आती है कि जो भी पूरा निफ्टी ऑटो का, जैसे अगर आप लेट्स अज्यूम मारुति को अगर आप देखते हैं तो मारुति सुजुकी इंडिया का भी अगर आप जैसे सारे के सारे सेक्टर, अगर आप सेक्टोरल चार्ट्स को देखेंगे तो सेक्टोरल चार्ट्स में अप ट्रेंड है और स्लो डाउन है, बट स्टिल ये शॉक अब्जॉर्ब किया जा रहा है। जैसे अगर आप निफ्टी आईटी को देखें तो निफ्टी आईटी में तो पूरा का पूरा ब्लड बात है, जो लॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट्स है वो भी ब्रोकन है और स्टिल कोई अभी होप नहीं दिख रही है कि स्ट्रक्चरल रिवर्सल हमें दिख रहा हो। इवन आप क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखेंगे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके, सो ईजिली यू सी डाउन ट्रेंड, बट ऑटो सेक्टर में वैसा नहीं दिखता है। पर फिर भी जो उनके मेजर इनपुट्स हैं वो धीरे धीरे करके स्लो डाउन की ओर इशारा दे रहे हैं। जैसे जो बेसिक राइजिंग इनपुट कास्ट, जो उनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ी है वो कमोडिटी प्राइसेस के इंक्रीज़ होने से बढ़ी है, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस उनके बढ़े हैं, लीडरशिप कमेंट्री जो उनकी आ रही है वो बेसिकली इट इज़ बीइंग सेइंग दैट देयर इनपुट कॉस्ट हैज़ बीन कॉजिंग दिस इम्पैक्ट टू गो बियॉन्ड। सो हमें देखना होगा कि सीएनए जो ऑटो सेक्टर की ये रैली है कब तक चलती है, क्या हमें मेजर अपडेट्स दिख रहे हैं। जो ओवरऑल रैंकिंग है अगर मुझसे आप पूछे तो जो शेयर वाइज है मारुति का शेयर सबसे, मारुति के पास लॉयंस शेयर है इंडियन ऑटो सेक्टर का, तो मारुति इज़ still showing a downtrend, not down, it's still in uptrend, but that uptrend how long will it continue, that's a matter of fact. यहाँ कोई स्टॉक एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए आपको जज करने के लिए कि कैसे आप एक सेक्टर को फ्रेगमेंट करके देखते हैं। सेकेंड मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट जो मुझे ऑटो सेक्टर का दिखता है कि जो लिटरली काफ़ी अच्छा कर रहा है इस सेगमेंट में, वो है महिंद्रा ने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट शो किया है। दे हैव 14.1% ऑफ मार्केट शेयर। टाटा मोटर्स के पास 15.2% मार्केट शेयर है। Hyundai जो कि फोर्थ है उसके पास अराउंड 10% का मार्केट शेयर है। Hyundai की अगर आप स्टॉक को देखें सो IPO के बाद जब से लिस्ट हुआ था, जिस प्राइस पे लिस्ट हुआ था उसी प्राइस पे खड़ा हुआ है। नो मेजर वॉल्यूम्स, अर्निंग्स को भी अगर आप देखते हैं तो देयर हैज़ बीन अ डाउन, लाइक दे हैव मिस्ड देयर अर्निंग्स टारगेट्स। So still I don't see a major boom in this stock, बट हमें ऑटो सेक्टर के लिए थोड़ा सा माइंडफुल होना होगा कि स्टिल जो प्री बाइंग सर्ज है जो मई में स्ट्रांगली एक्सपेक्टेड है, लेट्स सी हाउ इट ट्रांसलेट्स टू। जो रिस्क फैक्टर मुझे इसमें दिखता है जो एंट्री लेवल सेगमेंट पर, जैसे एंट्री लेवल सेगमेंट ऑल्टो, वैगनार, ग्रैंड आइटन, इनमें बायर्स काफ़ी प्राइस सेंसिटिव हो गए और डिमांड डिस्ट्रक्शन हुआ है। पॉजिटिव जो एंसिलरीज़ हैं जो इस प्राइस राइज से हमें एक मतलब निकालना चाहिए, वो जैसे एंसिलरीज़ कंपनीज़ हैं, जैसे भारत फोर्ज है, तो भारत फोर्ज ऑलरेडी अप ट्रेंड में, अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे से देखें तो इस प्राइस राइज का सीधा इम्पैक्ट आपको भारत फोर्ज में ज़्यादा अच्छा प्ले करने को मिल सकता है। तो अगर ये प्राइस राइज अब्जॉर्ब्ड है मार्केट में
तो आप अगर इस प्ले को लेट्स अज्यूम अगर हम मूविंग एवरेजेस पे भी इसे देखें तो ऑब्वियसली यू सी अ क्लियर ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम 50, दिस वाइट लाइन इज 50 मंथ मूविंग एवरेज, यू सी अ क्लियर सपोर्ट। तो अप ट्रेंड कंटिन्यूड है। आप इस ऑटो इंसिलरी ट्रेड को ज़्यादा बेटर प्ले कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू डायरेक्टली प्लेइंग ऑन ऑटो सेक्टर। मदरसन, सुमी, सोना कस्टमर, सो ये स्टॉक्स कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर ये प्ले ज़्यादा इफेक्टिवली प्ले हो सकता है। अगेन नॉट अ एडवाइस, यू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, दिस इज़ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस कि अगर एक ऑटो सेक्टर में रैली आती है या एक प्राइस हाइक, अगर एक कंपनी ऐसे डिमांड स्लो डाउन के टाइम पे भी कहती है कि हम प्राइस राइज कर रहे हैं, फिर उसको आप एसोसिएट करते हैं ऑटो सेक्टर से, ऑटो सेक्टर से एसोसिएट करने के लिए आप CNX ऑटो को ओपन करते हैं, आप देखते हैं कि ये सेक्टर पे अप ट्रेंड कंटिन्यूड है, फिर आप एंसिलरीज कंपनी को देखते हैं कि वहाँ पर ये मूवमेंट और भी ज़्यादा बेटर तरह से आपको दिख रहा है। तीसरी जो खबर है जो मुझे विच आई फील इज़ ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट, मेटल सेक्टर में काफ़ी रैली हमें देखने को मिल रही है और मेटल सेक्टर में जो अप ट्रेंड है वो कंटिन्यूड अप ट्रेंड है, इवन दो मार्केट में इतना स्लो डाउन है उसके बाद भी। जैसे अगर आप मेटल ETFs को देखें तो ICICI का जो मेटल ETF है उसमें हमें मिराई एसेट का भी मेटल ETF है, जिनमें हमें कंटिन्यूसली अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। और दो मेटल कमोडिटीज़ बहुत ही वॉलेटाइल होती हैं, पर मेटल के साइड से हमें काफ़ी अच्छी खबर देखने को मिल रही है। इसमें जो मेजर निफ्टी मेटल इंडेक्स जो 1.7% अप था लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे, सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 1.84% का जो अप था वो मोस्टली हिंडाल्को 4% अप था, नाल्को 4.1%, एल्यूमिनियम 4 ईयर हाई पे अपने ट्रेड कर रहा है, टाटा स्टील, वेल्सपन कॉर्प, वेदांता, सेल, JSW स्टील ने अपना एक नया प्लांट उड़ीसा में भी लगाने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। तो जब आपको सेक्टर में हरियाली दिखेगी तो आपको उन कंपनीज़ में एक्सपेंशन दिखेगा, केपेक्स दिखेगा, ओवरऑल स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। जितने भी नॉन फेरस सेगमेंट्स हैं, जैसे नॉन फेरस वो हो जाते हैं जहाँ पर लोहा या फेरस इज़ द ओर जिससे आयरन का एक्सट्रैक्शन होता है। सो एल्यूमिनियम, जिंक और कॉपर नॉन फेरस ओर्स में काफ़ी अच्छे मूवमेंट्स है। तो जैसे नॉन फेरस ओर्स आपके हो जाते हैं नॉन फेरस ओर्स से रिलेटेड जो PSUs हैं वो उसमें आपके आते हैं हिंडाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम। सो अगर हम हिंडाल्को को देखें तो हिंडाल्को का अगर आप दिस इज़ हिंडाल्को, सो इफ़ यू सी क्लियरली एक अप ट्रेंड हमें दिखता है। अगर हम क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे भी देखें तो हम काफ़ी अपने मूविंग एवरेजेस से डाइवर्जेंट है 80% का, बट स्टिल द अप ट्रेंड इज़ प्रिटी विजिबल। अगर हम हिंडाल्को के सेल्स को भी देखें, सो लेट्स अज्यूम अगर हम P&L शीट को देखें हिंडाल्को की, सो ओवरऑल आपको जो सेल्स नंबर्स दिखते हैं, जैसे आज से 11 साल पहले वो जो 1,04,281 करोड़ की सेल्स थी वो 2,74,944 करोड़ पे आ गई। मतलब 10 साल में अगर आपकी जो सेल्स ग्रोथ है, अगर 10 साल में कोई चीज़ डबल हो रही है तो बाय लॉ ऑफ 144 यू कैन सिंपली अज्यूम दैट इट्स का जो सेल्स ग्रोथ है वो 7% का है। बट आप प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं वो 20% का है। तो वो प्रॉफिट ग्रोथ जो आ रहा है वो आपकी ओवरऑल कमोडिटी की वजह से आ रहा है, उसके कमोडिटी के इंट्रिंसिक प्राइस राइज पे। OPM में भी इफेक्टिवनेस आपको दिखती है जो कि मार्च कंसिस्टेंटली 12%, 13% का OPM मेंटेन्ड है। और बेस्ट चीज़ जो आपको फोकस करनी चाहिए, जो सिक्लिकलिटी को हाइड करती है, किसी भी सिक्लिकल सेक्टर में आपको मार्केट कैप टू सेल्स देख के चलना चाहिए। अगर आपको अपने मीडियन से नीचे मार्केट कैप टू सेल्स पे अगर कोई स्टॉक मिल रहा है जैसे 0.1, 0.2, तो अगर आप देखिए ये 0.1 पे जब ये था February 16 में, तो वो बेस्ट टाइम होता है तो एक सिक्लिकल स्टॉक को पिकअप करने के लिए। और राइट नाउ हम अपने हिस्टोरिकल एवरेजेस से काफ़ी ऊपर ट्रेड करें। तो अगर हम February 16 में इसके प्राइस को देखें तो लेट्स अज्यूम दिस इज़ द February 16, लाइक लेट मी ओपन अ मंथली टाइम फ्रेम चार्ट and if you see this is where somewhere you could see February 16, and if you see little closely this is turn around market bottom। तो जो मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो होता है वो बहुत सारी सिक्लिकलिटी को अपने अंदर हाइड करता है। काफ़ी अटेंशन देने की ज़रूरत होती है आपको जब भी आप कभी एक सिक्लिकल बिजनेस से डील कर रहे हैं। थर्ड मेजर न्यूज़ जो एंड अगेन सम पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑन दिस मेटल रैली। सो हिंडाल्को का मुझे काफ़ी नॉन फेरस सेगमेंट में हिंडाल्को और एल्यूमिनियम के जो प्राइस राइज हैं, दिस लुक्स अ प्योर एल्यूमिनियम अपस्ट्रीम, बी वेरी माइंडफुल। जो अगर ग्लोबल रिसेशन फियर्स और चाइना का जो डिमांड का जो वॉबल है, अगर ये रैली थोड़ी सी भी स्लो डाउन होती है तो ये जो प्राइस जो कमोडिटीज़ होती हैं दे करेक्ट प्रीटी शार्प, सो बी वेरी माइंडफुल ऑफ दैट। थर्ड, JSW स्टील ने अपना उड़ीसा में एक प्लांट सेटअप करने की न्यूज़, they have started setting up this plant, so Odisha Steel Project plant, which is of going to be some 65,000 crore worth of value, which is pretty huge। और जो JSW स्टील के ओवरऑल स्टॉक प्राइस रिटर्न्स रहे हैं
अगर हम JSW स्टील के प्राइस JSW स्टील को देखें तो इस डाउनवर्ड मार्केट में भी कंसिस्टेंट सेक्युलर मूवमेंट अगर आपको दिखता है किसी स्टॉक में, दैट इज़ वेरी गुड. आई विल टर्न ऑफ द ribbons. Those are moving averages, monthly moving averages. So if you see, but volume is very low, and if you see the latest news is around the 65,000 crore Paradeep steel plant in Odisha. इसके जो मुझे ओवरऑल जो इस डील में हाईलाइट मुझे दिखती है, जो पैरादीप है वो जगह का नाम है जो धिनकिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है उड़ीसा के, वहाँ पर ये प्लांट सेटअप किया जा रहा है. इसकी जो कैपेसिटी प्लान की गई है वो 13.2 मिलियन टन की है पर एनम, MTPA बोलते हैं इसको. और जो 65,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है ये इंटायर कॉम्प्लेक्स के लिए है. अप टू 1.5 लाख करोड़ ये पूरा प्रोजेक्ट की कॉस्ट जा सकती है. जो लैंड एक्विजिशन की कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट 3,000 एकड़ का लैंड एक्विजिशन है. एंड जो पूरा का पूरा ये फेज़ डेवलपमेंट है, इसमें ब्लास्ट फर्नेस, कोक ओवन और सिंटर प्लांट, इस पे फेज़ 1 पे इसका ओवरऑल टर्नआउट रहेगा. अगर आप और डिटेल्स जानना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज गो ऑन टू द मैनेजमेंट, लाइक यू कैन गो टू द डॉक्यूमेंट सेक्शन एंड रीड अबाउट देयर ओवरऑल अनाउंसमेंट एंड प्रेस रिलीजेस टू सी व्हाट देयर ओवरऑल प्लान स्ट्रक्चर इज. बट समरी ओवरऑल यही है कि दे आर प्लानिंग अ केपेक्स. स्टॉक प्राइस अगर आप देखें तो स्टॉक प्राइस हैज़ शोन अ पॉजिटिव मूव ऑन दिस न्यूज़ ऑन अ डेली टाइम फ्रेम. सो या दैट्स द सेकेंड न्यूज़. नेगेटिव जो मुझे पूरे के जो इसकी जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, कोस्टल है, पोर्ट लिंक्ड है, उड़ीसा आयरन ओर में मतलब लोएस्ट लॉजिस्टिक्स कॉस्ट आती है आयरन ओर के एक्सट्रैक्शन में. एक्सपोर्ट के लिए बेटर बूस्ट है. बट जो रिस्क मुझे दिखता है कि जो केपेक्स का अमाउंट है वो बहुत बड़ा है ऑन FCF. सो दैट इज़ अ रिस्क दैट आई सी, बट अगेन इट्स अ गुड थिंग इफ़ यू आस्क मी. इफ़ यू सी KIOCL नेक्स्ट मेजर अपडेट जो आती है वो KIOCL की तरफ से आ रही है कि मार्च क्वार्टर में इनका जो पैट है वो 53.39 करोड़ बढ़ा है. सो अगर हम KIOCL को ओपन करें, सो KIOCL अगेन इस अगर आप देखेंगे तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील की एक कंपनी है. और KIOCL ने भी काफ़ी मतलब डायनेमिक मूव्स रहे हैं, काफ़ी जैसे प्राइस जंप्स रहे हैं कि 550 तक गया, फिर देन अगेन सेटल किया 300 पे एंड अगेन 400 पे ये आके सेट हुआ है. अगर हम सिक्लिकलिटी को हाइड करने के लिए मार्केट कैप टू सेल्स को देखें तो ऑब्वियसली काफ़ी प्राइसी रेशियोज़ पे ये कंपनी ट्रेड होती हुई दिखती है. 40 के मार्केट कैप टू सेल्स पे जब सेल्स डिक्लाइनिंग है, डजंट मेक सेंस. बट स्टिल क्योंकि एल्यूमिनियम और मेटल सेक्टर्स में रैली है तो KIOCL एक बेनिफिशियरी है. आई डोंट सी इट एज अ वेरी ऑप्टिमली रन बिजनेस. एज अ बिजनेस आई डोंट सी इट्स वेरी ऑप्टिमल. बट अगेन जो पैट है इनका दैट हैज़ बीन मार्च क्वार्टर का जो पैट है वो 53.39 करोड़ का आया है. एंड अगर हम स्टॉक प्राइस एक्शन को देखें तो ये पूरा का पूरा एक्शन है कि मंथली टाइम फ्रेम पे अपने एक रेजिस्टेंस को चैलेंज करता हुआ दिखता है. जब भी कभी कोई स्टॉक मल्टीपल टाइम्स एक रेजिस्टेंस को चैलेंज करता है विद हाई वॉल्यूम्स, देयर आर कंसिडरेबल चांसेस, दैट्स अ गुड लर्निंग अपॉर्चुनिटी. दैट क्या होता है नेक्स्ट ये आपको रिसर्च करके देखना चाहिए. नेक्स्ट थिंग मैं फोकस करना चाहूँगा इस न्यूज़ पे जो कि है वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स का. इनका भी क्वार्टरली प्रॉफिट 18% से राइज हुआ है, जो कि है आपकी वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स. अब वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स को जब आप देखते हैं ROC 6% का. अगेन पेपर बिजनेस, साइक्लिकल बिजनेस, किसी भी साइक्लिकल बिजनेस को जज करने के लिए मार्केट कैप टू सेल्स इज़ द बेस्ट इंडिकेटर व्हाट आई फील. और जो आपको नेट सेल्स का फिगर भी मिलता है वो भी बहुत ही म्यूटेड सा मिलता है. सेल्स लगभग जैन 2024 से वैसी हैं जैसे हमें पहले दिख रही थी. और अगर हम P&L स्टेटमेंट भी देखने की कोशिश करें तो 3 साल में सेल्स ग्रोथ नेगेटिव है और प्रॉफिट ग्रोथ तो और भी ज़्यादा बुरे हालात में है. बट स्टिल इनका प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है. और अगर आप देखेंगे कि वेस्ट कोस्ट पेपर मिल का जो ओवरऑल शॉर्ट टर्म रिलीफ है उसकी वजह से 2.36% की रैली हमें देखने को मिलती है. डब्बा गोली है इस बिज़नेस का, ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं इसके बारे में. इनका जो सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस था वो डोमेस्टिक पेपर इनका मेन ड्राइवर था और रियलाइजेशन स्ट्रेंथ इनकी इसी से ही आती है. वेस्ट कोस्ट पेपर मिल को अगर मैं खोलूँ तो इसका जो वेस्ट कोस्ट पेपर मिल का स्टॉक टिकर है आई थिंक काफ़ी अजीब सा नेम दिया है. वेस्ट कोस्ट स्टॉक. अगर मैं क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे देखूँ तो आपको ये पूरा का पूरा ट्रेंड काफ़ी 1999 से लिस्टेड कंपनी है
काफ़ी आपको साइकिल्स दिखते हैं, अप ट्रेंड स्टैग्नेशन, अप ट्रेंड स्टैग्नेशन, अप ट्रेंड कंटिन्यूड स्टैग्नेशन। तो ये सिग्निकल बिजनेसेस की पहचान होती है, आप इन्हें समझे, उसके बेसिस पे आप डिसीजन लें। कोल इंडिया में गवर्नमेंट टू एक्सरसाइज ओवर सब्सक्रिप्शन ऑप्शंस फॉर 1% स्टेक इन OFS। गवर्नमेंट अपना 1% हिस्सा बेचने की कोशिश कर रही है मार्केट में इस समय। कोल इंडिया काफ़ी अच्छी पोजीशन पे इस समय बैठा हुआ है, और जो अल्टरनेट एनर्जी क्राइसिस है, जो एनर्जी का ओवरऑल एक सेगमेंटेशन है, उसमें हमें यही दिखता है कि जैसे हाई ROC बिजनेस है, हाई ROE है, जो ओवरऑल डेट टू इक्विटी है नियर है, लोएस्ट है, काफ़ी अच्छा डिविडेंड यील्ड ये बिज़नेस देता है। कैश फ्लो अगर आप देखेंगे तो कैश फ्लो भी जो ओवरऑल कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है पिछले 10 सालों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, कोल की डिमांड बढ़ी है ओवरऑल। और अगर आप देखते हैं तो जो नेट DIIs की होल्डिंग है इस पर्टिकुलर इक्विटी काउंटर पे, वो कंसिस्टेंट रही है थ्रू आउट मार्केट डाउन साइकिल्स और अप साइकिल्स। FIIs ने रिसेंटली माल बेचा है, लेकिन फिर भी इट इज़ कंसिडरेबली नॉट दैट बैड। शेयर होल्डर्स का जो सेगमेंट है पब्लिक, इसमें लगभग डबल हो गई पिछले 3 सालों में, वो एक चिंता का विषय है। लेकिन फिर भी अगर हम कोल इंडिया को देखते हैं तो कोल इंडिया में हमें एक मंथली टाइम फ्रेम पे या वीकली टाइम फ्रेम पे हमें एक अप ट्रेंड सा दिखता है, पर जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं है तब तक हम इसको बहुत सीरियसली नहीं ले सकते। अगेन कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पसेस के लिए कि हाउ डू यू जज अ बिज़नेस। नेक्स्ट न्यूज़ जिस पे मैं फोकस करना चाहूँगा वो ये है कि आपका अडानी पावर ने इन्फोसिस को सरपास कर दिया है मार्केट कैप में, और अडानी पावर की जो स्टॉक रैली है वो 124% की रही है पिछले 1 साल में। अगर आप अडानी पावर का चार्ट देखते हैं, लेट्स अज्यूम आप एक मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो आपको ये दिखता है कि जब ये हिंडनबर्ग का फियास्को हुआ था उसके बाद से भी अडानी पावर लगभग आपका 177% की रैली दे चुका है। वॉल्यूम्स डिक्लाइनिंग है और रैली काफ़ी अच्छी है। और अगर हम अडानी पावर के फंडामेंटल्स को देखते हैं तो यहाँ पर आपको P&L स्टेटमेंट सिर्फ देखना चाहिए, ज़्यादा कुछ आपको नहीं देखना चाहिए कि सेल्स ग्रोथ 12% की है, प्रॉफिट ग्रोथ सिर्फ 6% की है 3 साल में नेट। और ये आपको काफ़ी कुछ बता देता है अगर आप समझदारी से देखें तो, कि आपको 6% की प्रॉफिट ग्रोथ पे 69% का कैगर कैसे मिलता है। तो ये आपको मार्केट को समझ, ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है मुझे, एवरीबडी इज़ स्मार्ट ईयर। और मार्केट कैप टू सेल्स अगर आप देखें पावर सेक्टर में, तो इनका मार्केट कैप टू सेल्स ये 8.8 के मार्केट कैप टू सेल्स पे ट्रेड कर रहा है। और वहीं आप अगर टाटा पावर को देखें तो टाटा पावर का मार्केट कैप टू सेल्स 2.18 का है। ये और भी इस सेगमेंट में जैसे कई सारी कंपनीज़ हैं जो कि पावर के सेगमेंट में काफ़ी अच्छा कर रही हैं। तो उन कंपनीज़ को अगर आप जैसे इनके पीयर से कंपेयर करते हैं तो यू सी दैट देयर इज़ सम प्रीमियम एसोसिएटेड विद दिस। अगर जैसे आप लेट्स अज्यूम इनके पीयर्स में कंपेयर करेंगे अगर, तो आप यू विल गेट दैट आइडिया। आई ओपन दैट हियर। जैसे अडानी पावर का P 37 का है, यहाँ पर 35.8 का है। अगर आप देखें तो जो सेल्स है वो ऑलमोस्ट 14,223 करोड़ की अडानी पावर की हैं, तो 14,900 करोड़ की टाटा पावर की भी हैं। बट जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी फिगर्स में अडानी जी लगभग सिमिलर सेल्स नंबर्स पे या लोअर सेल्स नंबर्स पे जो प्रॉफिट निकाल रहे हैं वो 4,000 करोड़ का प्रॉफिट निकाल रहे हैं, वहीं टाटा पावर 1,400 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकाल पा रहा है। या टाटा पावर कुछ अच्छा नहीं कर रहा है या टोरेंट पावर कुछ अच्छा नहीं कर रहा है, वहीं अडानी जी बहुत ही प्रॉफिटेबल है एंड दे आर एबल टू एक्सट्रैक्ट मच वैल्यू आउट ऑफ इट। और अगर इंटीग्रेटेड पावर कंपनीज़ को अगर आप देखते हैं तो जो ये सारी लिस्टेड पावर कंपनीज़ हैं जिन पे आप एक आइडिया ले सकते हैं कि बिज़नेस कैसा कर रहे हैं। जो एनालिस्ट का ओपिनियन है वो ये है कि जब इन्फोसिस को सरपास कर दिया है मार्केट कैप में अडानी पावर ने, तो अगर जैसे हम इन्फोसिस को देखते हैं, इन्फोसिस का अगर हम सिर्फ P&L स्टेटमेंट देखें, ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत होती नहीं है, तो 3 साल में सेल्स ग्रोथ 7% की है और 8% का प्रॉफिट ग्रोथ है, और स्टॉक का अगर -4% का है। तो जब हमें एक सेक्युलर ग्रोथ स्टेटमेंट मिल रहा है और जो ROC और ROE है वो बिज़नेस का बहुत हाई है, भले ही मार्केट कैप में वो वैल्यू हमें कम दिख रही है, हमें काफ़ी माइंडफुल होना चाहिए कि हम क्या डिसीजन ले रहे हैं और किस बिज़नेस को हम किन पैरामीटर्स पे जज कर रहे हैं। रेस्ट इज़ अप टू यू, दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस अगेन। अगली चीज़ हम देखते हैं कि PC ज्वेलर्स की जो क्वार्टरली प्रॉफिट सर्ज आया है वो 61% का है। अब जो लोग मार्केट में पुराने टाइम से यहाँ पर हैं, जो प्री कोविड के हैं, जैसे मुझे लगभग 10 साल हो गए इस मार्केट में, 10 साल से भी ज़्यादा हो गए इस मार्केट के साथ। सो अब जैसे अगर हम PC ज्वेलर्स को देखते हैं तो PC ज्वेलर्स का अगर आप पुराना चार्ट देखेंगे तो आपको ये बहुत बड़ा डिप मिलता है, जो कि लगभग लेट्स अज्यूम ये 58 रुपये का स्टॉक आके कुछ पैसे का आ गया था, जितना मुझे याद है 1 रुपये 20 पैसे 95 पैसे का ये स्टॉक आ गया था। इसमें जब ये पिटाई पड़ी थी इसकी,
तो वकरांगी से इनका काफ़ी लिंक था। वकरांगी मतलब जो वकरांगी के साथ इनके प्रमोटर स्पेकुलेशन थे, जिस वजह से काफ़ी इनका स्टॉक टूटा था फरवरी अप्रैल 2018 में। बाईबैक फियास्को भी हुआ था। इन्होंने कहा था कि 350 रुपये पर शेयर पे दे विल बाई बैक, बट इन्होंने बाईबैक से विड्रॉ कर लिया और फर्दर 28% स्टॉक क्रैश हो गया था। और जब आप इन स्टॉक्स का डाउन ट्रेंड देखते हैं पीसी ज्वेलर्स, या जब भी आप इन स्टॉक्स का डाउन ट्रेंड देखते हैं, वो इतना सडन होता है कि आप मतलब यू कांट जस्ट गेट आउट ऑफ इट। सो अगर जैसे मैं पीसी ज्वेलर्स, आई थिंक पीसी ज्वेलर इज़ द नेम, अगर आप पीसी ज्वेलर्स को देखते हो तो ये काफ़ी सस्टेन डाउन ट्रेंड के बाद 98% के डाउन ट्रेंड के बाद एक हेल्दी अपफ्लो दिखाता है ये स्टॉक। सो स्टॉक के फंडामेंटल्स में जो भी कन्फ्यूजन था वो अब कुछ हद तक क्लियर दिखता है, बट स्टिल ये पूरी की पूरी रैली जो गोल्ड की रैली थी उसका एक, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक कॉन्सिक्वेंस था। जब बारिश होती है तो सभी लोग भीगते हैं। सेल्स ग्रोथ 11% की है, प्रॉफिट ग्रोथ 77% की है। तो जो नेट ऑपरेटिंग पैट था इनका वो मार्च 2020 में नेगेटिव था, तो कोई भी ग्रोथ थी वो पॉजिटिव ग्रोथ थी। और जो ये सिक्लिकलिटी दिखती है कि नेगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ एंड देन बम्पर प्रॉफिट, तो वैसे स्टॉक से थोड़ा बचना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या गेम चल रहा है। और मार्केट कैप टू सेल्स या प्री रेशियो को ही अगर आप देखें तो काफ़ी कुछ आइडिया आपको मिल जाता है कि स्टॉक में क्या चल रहा है। स्टॉक मार्केट हेडलाइंस बहुत इजीली बन जाती हैं, लेकिन आपको समझना चाहिए कि हो क्या रहा है। सेम अनदर जो भी मैंने स्टोरी पिकअप की है वो भी कैफ़े कॉफ़ी डे के ऊपर है कि कैफ़े कॉफ़ी डे का जो Q4 पैट है वो 132 करोड़ का हो गया है। जो 144 करोड़ का गेन है वो वन टाइम गेन है इसमें ज़्यादातर, एंड ये एसेट मोनेटाइजेशन से इनके पास आया है। लेट मी ओपन कॉफ़ी डे, कैफ़े कॉफ़ी डे इंटरप्राइज, सिमिलर बिजनेस 2018 में इन पे भी सिमिलर पीसी ज्वेलर्स की तरह डंक लगा था आफ्टर देयर प्रमोटर सुसाइड, एंड सिंस देन ये स्टॉक अगेन सिक्लिकलिटी में मूव कर रहा है। नो मेजर वॉल्यूम गेंस, जब ये करेक्ट होता है तो ये 64% 65% यूं ही करेक्ट हो जाता है। अभी भी प्रीवियस मंथ के डाउन ट्रेंड में ये 60% करेक्ट हो गया, लेकिन अगेन हमें प्रॉफिट ग्रोथ नंबर्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे। और अगर हम इसको ओपन करके देखें P&L स्टेटमेंट को, अगर हम इसके देखते हैं तो हमें जो सेल्स के नंबर्स दिखते हैं, हमें सेल्स से काफ़ी कुछ पता चल जाता है कि हमें ये बिज़नेस 2015 में 2691 करोड़ का हुआ करता था, जो कि समिट के 2021 तक 888 करोड़ का आ गया था। और अगेन अब ये बाउंस बैक, एक रिकवरी है, स्लो रिकवरी है, धीमी रफ्तार की रिकवरी है, बट बिज़नेस के जो डिसीजंस है वो थोड़े हेल्दी दिखते हैं। 4% के सेल्स ग्रोथ पे 25% का प्रॉफिट ग्रोथ लेके आना काफ़ी बड़ी बात होती है। तो प्लीज़ डू योर स्टॉक मार्केट रिसर्च, एंड काफ़ी कंटिन्यूस रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है इनमें, जैसे वीजे सिद्धार्था ने के डिमाइस के बाद से, और जो काफ़ी डेट क्राइसिस थी इनकी वो काफ़ी वर्स हो गई थी, लेकिन उनकी जो वाइफ थी उन्होंने इसे काफ़ी टर्न अराउंड किया। और इट लुक्स लाइक अ हेडलाइन ट्रैप, बट अगेन इट्स अप टू यू, हाउ डू यू जज इट। नो स्टॉक रिकमेंडेशन, इट इज़ जस्ट फॉर योर ओन एजुकेशनल पर्पसेस। एल्केम लेबॉर्ट्रीज़ ने काफ़ी अच्छा स्टॉक ग्रोथ दिया है रिसेंटली। अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी अपवर्ड ट्रेंड में दिखता है। जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू था एल्केम का वो आपका क्लोज टू सम 14,712 करोड़ का आया है। अगर मैं एल्केम लैब्स को खोलूँ, अगर आप इनके सेल्स नंबर्स को देखते हैं, मार्केट कैप टू सेल्स अगर आप देखते हैं तो ये एक सेक्युलर अप ट्रेंड दिखता है आपको, और मार्केट कैप टू सेल्स भी मीडियन मार्केट कैप टू सेल्स के आसपास ही आपको नज़र आता है। सो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड साइन। जो डिविडेंड डिटेल्स है, इन्होंने 10 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है और इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है पिछले क्वार्टर में। रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ भी सेक्टोरल ट्रेंड्स के आसपास ही रहे हैं। अगर आप P&L में अगर आप देखेंगे तो लगभग 7% की सेल्स ग्रोथ है, और जो ट्रेलिंग 12 मंथ की है वो 12% की है, और जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी 11%। सेक्युलर बिजनेस है। सो दैट इज़ इट। जो एक नेक्स्ट मेजर न्यूज़ मुझे पिछले 2 दिन की लगी वो ये लगी कि निफ्टी मिड कैप 100 वो रिकॉर्ड हाई, मतलब जो निफ्टी मिड कैप को अगर हम देखें तो एक नया उसने कीर्तिमान सेट कर दिया है। वो अपने प्रीवियस हाई को भी ब्रीच करके आगे निकल गया CNX मिड कैप। और अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं तो आपको एक ये टाइम बेस्ड करेक्शन जैसी दिखनी शुरू होती है अगर आप इस ट्रेंड लाइन पे देखें तो। और जब मिड कैप का करेक्शंस होते हैं, मिड कैप के करेक्शंस भी बहुत ब्रूटल होते हैं। सो जैसे लेट्स अज्यूम 2 महीने पहले जो मिड कैप के करेक्शंस थे वो 11% के थे, बट वहीं अगर आपको कंप्लीट होलिस्टिक पिक्चर देखनी है तो आप निफ्टी 500 इंडेक्स को देख सकते हैं, जो कि अभी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रीच नहीं कर पा रहा है, पर स्टैग्नेशन है वहाँ पर भी। तो ये एक सेक्टोरल न्यूज़ जो देखने के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे, कि मिड कैप आउट परफॉर्म्स निफ्टी 50
दैट इज़ अ डोमिनेंट थीम ऑफ 2026। और इसमें भी जो सेक्टर के मेजर ड्राइवर्स हैं वो कैपिटल गुड्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर केपेक्स साइकिल्स हैं वो बढ़ रही हैं। डिफेंस में गवर्नमेंट का जो प्रोक्योरमेंट ऑर्डर्स हैं वो बढ़ रहे हैं। रेलवेज़ में जैसे कवच है, वंदे भारत है, स्टेशन मॉडर्नाइजेशन ऑर्डर्स हैं वो काफ़ी बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर सर्विसेज हैं, PLI स्कीम्स का जो टेलविंड है। सो दीज आर द मेजर ड्राइवर्स फॉर द ग्रोथ इन मिड कैप सेगमेंट। और इसमें काफ़ी सिलेक्टिव स्टॉक पिकिंग की ज़रूरत है। जो मिड कैप बास्केट है उसमें डिफेंस में जैसे HAL है, बेल है, भारत डायनेमिक्स है, ये काफ़ी रिटेल फेवरेट स्टॉक्स हैं। कैपिटल गुड्स में मुझे कमिंस है, ABB है, सिमेंस है। कमिंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कमिंस का अप ट्रेंड रुका ही नहीं है। इस पूरी साइकिल में भी आपको कमिंस इंडिया कंसिस्टेंट अप ट्रेंड में दिखता है और काफ़ी प्रीमियम पे भी ट्रेड कर रहा है, बट उसका अप ट्रेंड जारी है क्योंकि उसकी डिमांड जारी है, जो उसकी स्टोरी है वो इंटैक्ट है। तो पॉजिटिव तो ये थे एंड दैट्स ऑल। जो नेक्स्ट स्टोरी मैं कवर करना चाहूँगा वो होगी LIC में गवर्नमेंट अपना स्टेक बेच रही है। LIC काफ़ी धूम मचा के वो IPO आया था, लेकिन अगेन फर्दर LIC आए, सॉरी गाइस, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जहाँ लिस्ट हुए थे आज से 3 साल पहले, वहीं आज भी हम खड़े हुए हैं। बहुत ही जाइगेंटिक मूव्स और बहुत ही जाइगेंटिक डाउन टर्न्स। आई रियली फील देयर इज़ मोर टू बी डन हियर। गवर्नमेंट अपना 2% स्टेक बेच रही है लगभग 10,000 करोड़ में, ऑलमोस्ट $1 बिलियन में। एंड अगर आप देखेंगे LIC को, आपको अगर पूरी कहानी जाननी है तो आप ओनरशिप पैटर्न देखें, आप काफ़ी कुछ समझ जाएंगे। ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। अगर आप इन्वेस्टर्स को देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखता है कि 96.5% इंडियन गवर्नमेंट ओनर है। FIIs ने अपने हाथ नहीं गंदे किए हैं इस स्टॉक में, और DIIs में भी बहुत लिमिटेड DIIs हैं जो इस स्टॉक पे बुलिश हैं। बट अगर आप देखें ओवरऑल, अगर आप देखेंगे 32 लाख लोगों ने इस स्टॉक को जून 2023 में लिस्टिंग पे लिया था और आज वो 21 लाख इन्वेस्टर ही बच गए हैं। लोगों की हिम्मत धीरे धीरे टूट रही है। तो अगेन प्रॉफिटेबल बिजनेस, वी हैव टू सी क्या इसमें इज़ इट अ लैंड माइन और अ गोल्ड माइन। फोर्थ न्यूज़ है कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम्स को 475 करोड़ का ऑर्डर मिला है फ्रॉम चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। सो अगर हम कर्नेक्स को देखें तो ये आपका कवच सिस्टम बनाने में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। हाई ROE बिजनेस, डेट है विच इज़ कंसर्निंग, मार्केट कैप टू सेल्स काफ़ी ज़्यादा है, जितने की सेल्स नहीं करते उससे बहुत ज़्यादा का मार्केट कैप इन्हें अवॉर्डेड है। और अगर आप इनका ओवरऑल सिस्टम मतलब ओवरऑल वेबसाइट को भी अगर आप देखें, अगर एक 5,000 करोड़ के ऑलमोस्ट 2,500 करोड़ की कंपनी पे, तो मुझे मतलब दो दे कुड बी वेरी गुड, बट आई स्टिल सी सम डाउन साइड टू दिस स्टॉक। सिक्लिकल ऑब्वियसली सेल्स बहुत हाई है, सेल्स बढ़ रही है, बट अगेन जो मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो है वो सिर्फ सेल्स ऑर्डर्स पे पूरा का पूरा डिपेंडेंट है। P&L स्टेटमेंट को अगर हम देखते हैं तो हमें जो सेल्स ग्रोथ है वो 206% की दिखती है, प्रॉफिटेबिलिटी 79% की दिखती है। और प्रॉफिट ग्रोथ इस साल में काफ़ी ज़्यादा शो की गई है, जो कि 41 करोड़ से 61 करोड़ का हो गया है। बट अगेन इट्स R&D बिजनेस, वी हैव टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ आवर चॉइसेस। अगर इतनी प्रॉफिट ग्रोथ पे आप अगर देखें स्टॉक का मूवमेंट देखेंगे तो आपको स्टॉक का मूवमेंट कंसिस्टेंट अप ट्रेंड दिखता है, जो कि लगभग 13 रुपये के स्टॉक को हम 1,400 रुपये पर हमने खड़ा कर दिया इस समय, जो कि ऑलमोस्ट 10,000 लगभग 109 गुना का अपराइज है। तो आपको बड़ा माइंडफुल होकर सोचना है कि क्या अभी भी फर्दर अपसाइड बचा है या क्या है। काफ़ी स्मॉल कैप रेल टेक कंपनी है, 475 करोड़ का ऑर्डर है, जो कि मल्टीपल एनुअल रेवेन्यू के बराबर होता है इनके। और जो कवच वेंडर्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं, कर्नेक्स है, HBL पावर सिस्टम्स है, मेधा सर्वो ड्राइव्स है। तो काफ़ी ओलिगोपोलिस्टिक पोजिशनिंग है कि मतलब 2-3 बिजनेसेस ही हैं जो इस पूरे सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं। And yes guys, so these are the major news updates for this market. I think this video has been very long, but consider if you like my analysis, try subscribing to my channel, and okay guys, see you at the next session. Bye.